रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज हमारे बीच कुलाधिपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौजूद हैं। इस अवसर पर 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम अपनी परंपरा के अनुसार विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हृदय के इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए हम अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह जी से निवेदन करूंगी कि आज के इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री रमेश बैस जी यहाँ मौजूद हैं। पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आज के इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद एक्स वाइस चांसलर बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डॉक्टर MP पांडे साहब यहाँ मौजूद हैं। पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। मंचासीन अपने अतिथियों का अभिनंदन पुष्पगुच्छ देकर हमने किया। हम उम्मीद करते हैं कि इन फूलों की खुशबू की तरह आपकी ख्याति चारों तरफ फैलती रहे और अपने इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर निवा बारा से कि मंचासीन माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें।
अभिनंदन के बाद महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री रमेश बैस जी से कि आज 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। उनके साथ मौजूद गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर एम.पी. पांडे साहब, एक्स वाइस चांसलर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय माननीय कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ मंचासीन मंच पर मौजूद दीप प्रज्वलित कर यह संदेश देते हुए कि दीपक की जलती हुई लौ के उज्ज्वल प्रकाश में आने वाले वक्त में हम नई उम्मीदें, नई आशाओं के साथ एक नए संसार की रचना में अपनी अहम भूमिका। Good afternoon to all. Most respected Chief Guest, Sri Ramesh Bains, Honorable Governor and Chancellor of the Universities of Jharkhand, respected guest of honor, Dr. M.P. Pandey, ex-Vice Chancellor of Birsa Agricultural University and Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Chhattisgarh, respected Dr. O.N. Singh, Vice Chancellor of Birsa Agricultural University, Ranchi, respected ex-professors Dr. N.C. Das, Dr. S.C. Prasad, respected ex-staff members, BAU, Sri Pachu Mahato, Sri Damdi Ram and Sri Ravindranath Das, all the respected deans, directors, associate deans, chairpersons, HODs, professors, staff members and workers of BAU and students, invited farmers from different agroclimatic zones and Ulihatu, the birthplace of the Bhagwan Birsa Munda, press and media, ladies and gentlemen. It is my proud privilege and I am extremely honored to welcome all the dignitaries on this auspicious occasions of the 42nd Foundation Day of Birsa Agricultural University, whose foundation was laid down by the then Honorable Prime Minister Srimati Indira Gandhi in 1981. I am delighted and feel honored to welcome our Chief Guest of the 42nd Foundation Day of the Birsa Agricultural University, Sri Ramesh Bains ji, Honorable Governor and Chancellor of the Universities of Jharkhand. Sir, your gracious presence on this occasion shows how affectionate, considerate and concerned you are about this welfare of this Birsa Agricultural University. I am sure and confident that I am also delighted to welcome our guest of honor, our ex-Vice Chancellor Dr. M.P. Pandey, to grace this occasion of 42nd Foundation Day of Birsa Agricultural University. This shows his love and affection for this university. I am sure, sir, your vast experience as ex-Vice Chancellor of this university as well as the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya will definitely guide us taking this university to its academic excellence. I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor Dr. O.N. Singh on the 42nd Foundation Day of the university, who has meticulously guided us day to day for the last 1 month for making this important event a grand success. It is my pleasure to welcome our respected ex-professor, Professor N.C. Das, Dr. S.C. Prasad, ex-staff members Sri Pachu Mahato, Sri Damdi Ram and Sri Ravindranath Das. I would also like to welcome our esteemed farmers guests from different agroclimatic zones of Jharkhand and Ulihatu, the birthplace of the Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda, for their gracious presence on this occasion. Deans, directors, associate deans, chairmen, HOD, professors, engineers, supporting staff members, workers, students, and most importantly, our students for their gracious presence to make this event a grand success. Without all of your sincere effort, it would not have been possible to make this event successful. Last but not the least, on behalf of BAU and on my own behalf, I would like to welcome press and media personnel for their gracious presence and covering these events. Welcome you all who are present here to make this event a grand success. Thank you very much and welcome. डालते हुए आप अपना उद्बोधन हमें संबोधित करें। जोहार। मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति झारखंड श्री रमेश बैस जी, विश्वविद्यालय के 42वें स्थापना दिवस में आपकी गरिमामय उपस्थिति से शोभामान समारोह में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर M.P. पांडे जी, पूर्व कुलपति BAU रांची तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का समारोह में हार्दिक स्वागत है। मौके पर विराजमान माननीय राज्यपाल के राजभवन परिसर के सभी सम्मानित अतिथि, समारोह में विराजमान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डीन एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, सभी डायरेक्टर्स, सभी एडिशनल डायरेक्टर्स, एसोसिएट डीन, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारी, प्यारे स्टूडेंट्स, कर्मचारी एवं आकस्मिक श्रमिक, किसान भाइयों, मीडिया के साथियों तथा देवियों और सज्जनों,
आप सभी का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 42वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पुनीत अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को शत शत नमन। साथ ही विश्वविद्यालय के शिल्पकार स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी को भी नमन। आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 42वें स्थापना दिवस समारोह में महामहिम की गरिमामय उपस्थिति से पूरा विश्वविद्यालय परिवार आनंदित है। अब हम उनमें अपार खुशी है। आपके आगमन से विश्वविद्यालय में एक नया जोश एवं बेहतर करने की भावना का संचार हुआ है। आपके भागीरथी प्रयासों एवं मार्गदर्शन में वर्षों बाद झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से वेटरनरी कॉलेज को 5 सहायक प्राध्यापक मिले हैं महोदय। आपके ही प्रयासों से पुनः झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक के पद पर वेटरनरी कॉलेज हेतु 3 तथा एग्रीकल्चर कॉलेज हेतु 7 चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा की है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को आपके कर कमलों से आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है। आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय तेजी से राष्ट्रीय पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2020 में कृषि विश्वविद्यालयों में ICAR की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है महोदय। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ड्रेस्टिक इम्प्रूवमेंट होगा। ICAR रैंकिंग मानकों के अनुरूप हम इस साल काफ़ी, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट हुए हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। शैक्षणिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय के अनेकों महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में UG, PG एवं PhD कोर्स में लगभग 1500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय इतिहास में पहली बार 316 विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट तथा 20 विद्यार्थियों को वोकेशनल एवं डिप्लोमा कोर्स में डिग्री प्रदान की गई है। इनमें 3 कृषि महाविद्यालयों तथा फिशरीज साइंस एवं डेयरी कॉलेजों के कुल 185 विद्यार्थी डिग्री लिए हैं। इस वर्ष एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एवं हार्टिकल्चर कॉलेज के विद्यार्थियों को पहली बार डिग्री मिलेगी। विगत वर्ष विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे क्षेत्रों में अपार सफलता हासिल हुई है। राज्य गठन के बाद राज्य सरकार के कृषि पदाधिकारी संवर्ग के विभिन्न पदों एवं नवनियुक्त 129 पदाधिकारियों में लगभग 60% केवल इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी क्वालिफाई किए। सरकार द्वारा राज्य चयन आयोग के माध्यम से 500 से अधिक पदों को विज्ञापित किया गया है। सरकार का यह प्रयास विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के नियोजन हेतु बेहद सार्थक प्रयास एवं शुभ संकेत है। विश्वविद्यालय के कुल 16 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में नामांकन से विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। विश्वविद्यालय के कुल 83 विद्यार्थियों को ICAR द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित जूनियर रिसर्च फेलोशिप में सफलता मिली है। नवोदय एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पहले बैच के कुल 14 विद्यार्थियों ने गेट 2022 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। मैं इन सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय की तरफ से बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय के कुल 25 विद्यार्थियों ने IBPS जो बैंकिंग परीक्षा का एग्जाम लेता है ऑफिसर कैडर में 21 में सफल होकर बैंकिंग क्षेत्र में एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के पद पर योगदान दे चुके हैं। विश्वविद्यालय के 25 विद्यार्थियों को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में यंग प्रोफेशनल के पद पर प्लेसमेंट मिला है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की सांस्कृतिक एवं खेल अनुसंधान के क्षेत्र में महोदय विगत वर्ष फसल सुधार के मामले में शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दिशा में हमारे कृषि सचिव श्री अबू बकर जी, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सहयोग का पूरा विश्वविद्यालय आभारी है, जिनके प्रयासों से प्रदेश के किसानों के हित में स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। वर्षों बाद वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न फसलों हेतु 10 उन्नत किस्मों को सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी ने नोटिफाई किया है। विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में स्थानीय केंद्रीय ICAR संस्थानों के सहयोग से राज्य के उपयुक्त विभिन्न फसलों के 16 उन्नत किस्मों को चिन्हित किया गया है, जिसे मार्च 2022 में कृषि सचिव झारखंड सरकार की अध्यक्षता में स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी ने रिलीज किया है। परिस्थिति के अनुरूप 150 तकनीक से युक्त तकनीकी दस्तावेज को प्रकाशित किया गया है, जिसे स्थानीय एवं बोलचाल की भाषा में प्रचारित की जा रही है। ये तकनीकी राज्य के किसानों के हित में मील का पत्थर साबित होगी। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रदेश के किसानों के हित में स्थानीय
उपयुक्त कृषि तकनीकी के प्रसार को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इस दिशा में वैज्ञानिकों द्वारा लिखित एवं समाचार पत्र में प्रकाशित तकनीकी आलेखों को संकलित कर किसानों की पंचायतनामा नामक पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, जिसे महामहिम के कर कमलों से आज विमोचन किया जाना है। ICAR संपोषित विभिन्न परियोजनाओं में जनजातीय उपयोगिता के अधीन विभिन्न नवीनतम तकनीकी पर प्रशिक्षण, प्रक्षेत्र दिवस, किसान गोष्ठी एवं किसान वैज्ञानिक अंतर्मिलन के माध्यम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष गोभी सरसों के शोध का प्रयास सफल रहा है। उम्मीद है हम लोग इसमें सफल होंगे। इस शोध में अनेक विषयों पर शोध सफल होने से प्रदेश के किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार कार्यक्रमों में प्रदेश कृषि की दशा एवं दिशा सुधार को बल मिला है। विश्वविद्यालय के तकनीकी बैक स्टाफिंग मार्गदर्शन में जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र स्थानीय ग्रामीणों की वर्तमान एवं भावी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, बताते रहते हैं और हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग इन सभी चीज़ों में सफल होंगे। जैसे प्रमोशन है, सेवानिवृत्त की आयु है, या तमाम सारी इस तरह की चीज़ें हैं। आज का दिन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण दिवस है। विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा हम सभी का दायित्व है, जिस पर पूरे विश्वविद्यालय परिवार का कल्याण वर्तमान एवं भविष्य टिका है। इस पुनीत एवं पावन बेला पर सभी को इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील हेतु संकल्पित होना होगा। जय बिरसा, जय हिंद, जय भारत। रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत है। आज के इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने इसका विमोचन किया। अनुसंधान, साथ ही साथ प्रसार और शिक्षण, ये हमारे तीनों मैंडेट्स हैं, जिनमें हम निरंतर अपने अपने तरीके से जो कुछ दिशा में पठारी कृषि का प्रकाशन त्रैमासिक यहाँ किया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा। और यह त्रैमासिक पठारी कृषि एग्रोनॉमी रांची वेटनरी कॉलेज यहाँ पे मौजूद है। आज इन्हें इस अवसर पर यह अपॉइंटमेंट लेटर, असिस्टेंट नाम है डॉक्टर सुब्रत कुमार दास, डॉक्टर और ये रांची वेटनरी कॉलेज में सिलेक्टेड लोग हैं जिन्हें JPSC ने चयनित किया है। अगला नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में इनका चयन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में JPSC के द्वारा। डॉक्टर केरोबिन लकड़ा, इनका चयन हुआ है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। ये वो चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है JPSC के द्वारा। मिस्टर शिवम मिश्रा, महामहिम राज्यपाल के द्वारा उनके अथक प्रयास से ही यह सब संभव हो पाया है और आज उन्हीं के करकमलों से उन्हें ये दी जा रही है। अपॉइंटमेंट से है डॉक्टर पुनीता कुमारी, डॉक्टर ऋतु, ये वो चयनित प्रतिभागी थे या कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को मिले हैं। JPSC के द्वारा इनका सिलेक्शन हुआ, प्रयास महामहिम राज्यपाल का था और आज उनके करकमलों से इन्हें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड स्टैटिस्टिक्स विद लीस्ट रिसोर्सेज, ये पुस्तक उनकी लिखी हुई है जिसे आज वो महामहिम राज्यपाल को यहाँ भेंट कर रहे हैं। वो मूलतः भागलपुर के रहने वाले हैं और 1929 में उनका जन्म हुआ। 1963 से लेकर 1993 तक कुल 30 वर्षों तक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी सेवा दी है और आज 93 वर्ष उन्होंने जोरदार तालियां उनके लिए 93 ईयर्स के एज में ये हमारे इंस्पिरेशन के रूप में हमारे महामहिम आगे बढ़कर उन्हें यह शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए झारखंड श्री रमेश दास जी, उनके उस अनुभव का, उनके द्वारा दिखाए गए उस पथ का, उनके द्वारा समर्पित उनके कार्यकाल की वजह से 42 वर्षों का यह सफर जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने तय किया है, जिनमें उनके परिश्रम, उनके मार्गदर्शन और उनकी भूमिका रही है, आज यह सम्मान देते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो उनका ऋणी है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस अवसर पर उप नियंत्रक के पद तक पहुँचे थे और लगभग 39 वर्षों तक इन्होंने 1994 तक अपनी सेवा दी थी और 1994 में ये रिटायर हुए। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के डॉक्टर DK रुशिया, DK रुशिया, इन्हें यह प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है इनके बेहतरीन कार्यों के लिए। विश्वविद्यालय सभी का समाहित रूप है
क्या शिक्षक पोजीशन पर रहे हैं श्री अमित कुमार झा, ये कंप्यूटर असिस्टेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। अमित कुमार झा ये डायरेक्टर BA में और यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये इनकी हौसला अफजाई के लिए है। अपने कार्य के अलावा निरंतर बेहतरीन करने की क्षमता इनके अंदर विकसित हो पाए, एक प्रतियोगिता की भावना अपने अंदर विकसित हो पाए, इतनी भी इनकी बहुत बढ़िया है। तो आज उन्हें इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है श्री आलोक कुमार झा। और एक कॉन्सोलेशन प्राइज है श्रीमती भारती कुमारी, कंप्यूटर असिस्टेंट रजिस्ट्रार में। भारती कुमारी कॉन्सोलेशन प्राइज इनको मिला है। फर्स्ट प्राइज, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। निश्रेया आनंद सेकंड प्राइज। निश्रेया आनंद वेटनरी कॉलेज श्री सुशील कुमार मिश्रा सेकंड प्राइज है। थर्ड प्राइज है श्री संबुल फैजानी। श्री संबुल फैजानी ये है फर्स्ट ईयर तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा। पीछे हमारा सफर तय किया है और हमारे साथ इतने दिनों तक रहे हैं और हम आज इन्हें यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि वक्त की धूप हो या हो तेज आंधियाँ, वक्त की धूप हो या हो तेज आंधियाँ, मैं उनसे सादर निवेदन करती हूँ उनके आशीर्वचन का कि सर आप आएँ और हम सबको आशीर्वचन के शब्दों से अनुग्रहित करें। झारखंड के माननीय राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्रद्धेय श्री रमेश बैस जी, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह जी, मंचासीन अन्य विशिष्ट जन विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मियों, छात्र छात्राओं, देवियों और सज्जनों, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 41 वर्ष पूरा होने पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी यहाँ 3 वर्ष कुलपति के रूप में रहा, उससे जुड़ी सुखद स्मृतियाँ ताज़ी हो रही हैं। सामने बैठे अधिकांश चेहरे जाने पहचाने हैं। 41 वर्षों के सफ़र में विश्वविद्यालय ने बहुत सी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं और अब भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। विश्वविद्यालय को सिर्फ उच्च शिक्षा का केंद्र ही नहीं होता है, यह ऊंचे लक्ष्यों, ऊंचे संकल्पों और उनको साधने की शक्ति हासिल करने का एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है। ये बहुत बड़ी ऊर्जा भूमि है, प्रेरणा भूमि है। ये हमारे चरित्र के निर्माण का, हमारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रेरणा स्थली भी है। देश को प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों का निर्माण ऐसे ही संस्थानों में होता है। विश्वविद्यालय के शिक्षक साल दर साल विद्यार्थियों के बौद्धिक, एकेडमिक और शारीरिक विकास को निखारने के लिए प्रयासरत रहते हैं। छात्र अपने सामर्थ्य को पहचाने, इसमें भी शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। सामर्थ्य के साथ साथ नियत और इच्छा शक्ति का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर इच्छा शक्ति का अभाव है तो जीवन में कभी भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। आपकी सकारात्मक सोच और इच्छा शक्ति ही आपके काम अवश्य आएगी। मुझे बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर के वहाँ 11 हो गई है। इसका दैहिक विस्तार राज्य के सभी प्रमंडलों तक हो गया है। पुराने कॉलेजों में भी अंडर ग्रेजुएट की कुछ सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के लिए तकनीकी मानव संसाधन विकसित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी, बल्कि कहिए कि घोर कमी से जूझ रहा है। जब मैं यहाँ कुलपति था उस समय वर्ष 2014 में नियुक्तियों का अधिकार BAU से लेकर करके झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया गया था, किंतु मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार JPSC पिछले 8 वर्षों में BAU के लिए मात्र 10 शिक्षकों की भी भर्ती नहीं कर पाया। माननीय राज्यपाल जी की पहल से ही शिक्षकों, वैज्ञानिकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों में तेजी आई, ऐसी आग्रह मैं करना चाहता हूँ। किंतु एक बहुत प्रसन्नता की बात भी है कि शिक्षकों की बहुत कमी के बावजूद भी छात्र छात्राओं का एकेडमिक प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। हर वर्ष यहाँ के विद्यार्थी बड़ी संख्या में देश की अग्रणी कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि शोध संस्थानों, लीडिंग बिजनेस स्कूल्स में PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में सफल रहे हैं। रॉयल वेटरनरी कॉलेज लंदन में भी यहाँ के वेटरनरी ग्रेजुएट्स का नामांकन हुआ है।
ये हमें बड़े गर्व की बात है। वो आपका समय चुरा लेते हैं, निश्चित तौर पर आपका समय छीन लेते हैं आपसे, लेकिन इन सब के बीच भी आपको अपने लिए समय निकालना होगा। उस समय तो अपने लिए निकालना ही होगा। आप कितना समय खुद को दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, इस दिशा में भी सोचना बहुत ही जरूरी है। इसका सीधा प्रभाव आपके सामर्थ्य और आपकी इच्छा शक्ति पर पड़ेगा। बीएयू का 42वां स्थापना दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ रहा है, इसलिए आज के शुभ अवसर पर महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी संकल्प होना चाहिए, जिसका कि दूरगामी असर दिखे, नीतिगत असर दिखे, लीक से हटकर कुछ दिखे, कम से कम अगले 8-10 वर्षों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को पुनः बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 42वें वर्षगांठ की हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय समुदाय का संवेद प्रयास से बीएयू आने वाले समय में समस्त पूर्वी भारत में अग्रणीय विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना जाएगा, उभरेगा। जय हिंद। साथ ही साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किसानों को क्या दे सकता है? वो दे सकता है तो वो बीज दे सकता है, जैसे किसानों का खेत लहलहा, सोयाबीन के बीज हैं, लिनसेड का है, पीचन पी का है, मुल्लार मूंग का है, मिलेट का है, मस्टर्ड का है, मक्के का है और नाइजर का है। हम उनके अनुभव के मोतियों से लाभान्वित हो। मैं महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री रमेश बैस जी को सादर निमंत्रित करती हूँ उनके आशीर्वचन के। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह जी, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति MP पांडे जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नरेंद्र कुतादा जी, निर्देशकगण, अपर निर्देशकगण, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण, शिक्षकगण एवं वैज्ञानिकगण, कर्मीगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसान भाई एवं बहनों, देवियों एवं सज्जनों, प्रेस व मीडिया के साथियों, आज विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित जो यहाँ के विश्वविद्यालय के लिए जो अपना समय दिया और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ने में जिन्होंने सहयोग दिया, मैं उनको भी कभी नहीं भूल सकता। डॉक्टर NC दास जी, डॉक्टर SC प्रसाद जी, श्री दामड़ी राव जी, श्री पंचू महतो जी, श्री NC दास जी, CN दास जी, ऐसे विभूतियां हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जब सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का जब मैंने बैठक लिया और बैठक में जो बातें आई मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। कि झारखंड के पूरे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में 30% स्टाफ में काम चल रहा था। 42 कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं थे। अब ऐसे विषम परिस्थिति में हम कैसे काम करें कि 2008 से JPFC में कोई एग्जाम नहीं हुआ, 2008 से 2021 तक हमारे लेक्चरर प्रोफेसर भी रिटायर होते गए, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, पदें खाली रही और उस बीच में भी आप लोग काम करते रहे। मैं आपका स्वागत करता हूं। जीवन तो संघर्ष है बोलते हैं और जो कमियों में भी अपना पूरा काम कर ले वही सिद्ध होते हैं।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुझे आप सभी के बीच सम्मिलित होकर अपार खुशी हो रही है। मुझे खुशी है कि राज्य में स्थापित इस कृषि विश्वविद्यालय का शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार माध्यमों से राज्य के कृषि विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। विश्वविद्यालय राज्य में कृषि के विकास की दिशा में निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। 3 महाविद्यालयों के साथ वर्ष 1981 में स्थापित इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल 11 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। विगत 4-5 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या में 4 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस विश्वविद्यालय से वर्ष 2021-22 में कृषि, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन तथा वानिकी विषयों में 316 विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री मिली। करीब 64 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में पीजी एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय अधीन कार्यरत 3 नए कृषि महाविद्यालयों तथा डेयरी औद्योगिक एवं मत्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को पहली बार स्नातक की डिग्री प्रदान की गई। मुझे जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय के स्नातक, पीजी एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों में 1450 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस वर्ष उद्यान एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी स्नातक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं और किसानों की समस्याओं को भली भांति समझता हूं, उनकी परेशानियों से अवगत हूं। मैं चाहता हूं कि राज्य के किसान आत्मनिर्भर बने और इसके लिए इस विश्वविद्यालय को प्रयत्नशील रहना होगा। हमारे वैज्ञानिकों को किसानों के बीच खेतों में जाना होगा तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा देवरी गांव में स्थापित एलोवेरा विलेज की चर्चा की और आदिवासी महिला किसानों के कार्यों की सराहना की। विश्वविद्यालय द्वारा संग्रहित गिलोय जर्म प्लाज्म को राष्ट्रीय पहचान मिली। प्रसन्नता है कि विगत वर्ष जैविक सब्जी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली के विकास की दिशा में सराहनीय प्रयास किया गया। राज्य के बहुतायत किसानों की आजीविका का पशुपालन प्रमुख साधन रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित संकर मुर्गी नस्ल झारसीम एवं संकर सुकर नस्ल झारसुक तथा बकरी के ब्लैक बंगाल नस्ल सुधार कार्यक्रम राज्य के किसानों की आजीविका एवं पोषण सुरक्षा में उपयोगी साबित हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा जिला स्तर पर क्षमता निर्माण के तहत युवक युवतियों को स्वरोजगार आधारित नियमित प्रशिक्षण, किसानों के खेतों में तकनीकी परीक्षण से तकनीकों को बढ़ावा, अग्रिम पंक्ति प्रशिक्षण से उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा तथा अन्य कृषि प्रसार गतिविधियों से देश के बहुतायत किसानों की कार्य क्षमता तथा कौशल विकास को काफी बल मिल रहा है। मैंने एक कार्यक्रम में यहाँ पर जब आया था तो उस समय भी मैंने ये बातें कही थी कि लोग कितना भी व्यवसाय कर ले, व्यापार कर ले, आने वाला समय किसान का है। जिनके पास जमीन होगा वही सबसे अमीर व्यक्ति कहलाएगा। अब कल्पना कीजिए, शहर विकास हो रहा है, नगर पंचायत बनते हैं, नगर पंचायत से नगर निगम बनता है, नगर निगम का क्षेत्र बढ़ता है, गांव पूरे नगर निगम नगर पालिका में आ जाते हैं, कृषि भूमि कम हो रहा है,
अब कृषि भूमि जब कम हो रहा है तो हम कृषि भूमि बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए सरकार चिंतित है कि अब जमीन जो फैलाव जो को रुक रहा है, सीमेंट का जंगल बन जाए, उसको फिर से हम उपजाऊ जमीन नहीं बना सकते। पहले जमीन की कीमत नहीं होती थी। मुझे मालूम है कि मेरे गांव में जब मैं गांव जाता था छुट्टी में, भाटा लैंड का कीमत था 100 रुपए एकड़ में, कोई खरीदता नहीं था। आज वही जमीन 40 लाख एकड़ हो गया है। लेकिन कई किसान जमीन के भाव आने के कारण पैसे की लालच में अपना जमीन बेच रहे हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट बनता है, उसमें सरकार ले लेती है। लेकिन सरकार का भी एक कानून है कि जब तक किसान अनुमति नहीं दे तब तक सरकार कोई भी काम के लिए कोई भी जमीन को एक्वायर नहीं कर सकता। अगर किसान अड़ जाए कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, मेरे पूर्वजों की जमीन है, तो कोई सरकार कोई किसान का जमीन नहीं ले सकता। लेकिन जब भाव जब उनको मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, तो पैसे की लालच में वो जमीन बेच देता है। और जब जमीन बिक जाती है, जब नगद पैसा उसके हाथ में आता है, वो पैसा ज्यादा दिन नहीं रुकता। लक्ष्मी चलायमान है, वो कभी कहीं स्थिर नहीं होता। अगर पैसा खत्म हो गया, मैं तो देखा हूं कि रायपुर में पांडे जी को मालूम होगा, नया रायपुर जब बना उसमें 35 गांव उजड़े, किसानों को पैसा मिला जो सोचे नहीं थे किसान, उससे कई गुना ज्यादा मिला। जो 20,000 रुपए एकड़ में बेचने की चाहते थे, उसको 38 लाख रुपए मिला। 38 लाख की जब बातें आई तो सब किसान अपना जमीन बेचना चालू कर दिए। पैसा आया कुछ तो शराब पीना चालू कर दिए, कुछ मोटरसाइकिल खरीदना चालू किए। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि गांव के किसान को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए एक चालक भी नियुक्त किया। मेरे गांव में आपको आश्चर्य होगा कि 2 व्हीलर का मेला लगता था और मेले में आसपास के किसान गाड़ी खरीदने आते थे और जमीन नहीं खरीदे। कुछ किसान समझदार थे, उन्होंने वहां का जमीन का पैसा जो मिला दूसरे गांव में जाकर कम कीमत में ज्यादा जमीन भी खरीद ली। लेकिन जिन्होंने जमीन नहीं खरीदा आज वो सड़क पर आ गए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके पास जमीन होगी आगे चलकर उनका ही भविष्य है। समय परिवर्तन होता है, खेती आज घाटे का धंधा है। हमारे बच्चे खेती करने के लिए उत्साहित नहीं होते, लेकिन हमको वहां पर खेती जब तक हमारे पास रहेगी तो हम अपना स्थायी निवास कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रथा होती थी कि किसी का अगर पहचान करना हो तो ये कौन है पूछते थे, तो उसके गांव के सहारे उनको जाना जाता था। ये फलाने गांव का फलाना दाऊ है, वो जमीन के नाम से जाना जाता था। एक समय हम जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय आप लोगों को याद होगा कि हमारे देश में बहुत कम सामानें बनती थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय डार्ट पेन नहीं आया था, बॉल पेन नहीं आया था, होल्डर से हम लोग लिखते थे। स्याही की दवात हाथ में लेकर स्कूल जाते थे और जब स्कूल से लौटते थे तो पूरा हाथ नीला हो जाता था। होल्डर का नीब मेड इन जर्मन होता था। उस समय एक समय था कि पूरा विश्व जर्मन को जर्मन का लोहा मानता था। उसके बाद हर सामान में देखो आप मेड इन जापान आया, अब देखो मेड इन चाइना आया। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय पूरा विश्व मेड इन भारत होगा।
मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। महिम राज्यपाल ने आज हमारे बीच आकर हम सबको गौरवान्वित किया है। उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित करें और यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज यह स्मृति चिन्ह आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से भेंट की जा रही है। उम्मीद है कि यह प्रेम और स्नेह की कड़ी जो ईश्वर ने साक्षी के साक्षी। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को मेरा सरसत नमन। समारोह में विराजमान मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल सह विद्यालयों के कुलाधिपति झारखंड श्री रमेश बैस जी का हार्दिक आभार। आपकी उपस्थिति से हमारा समारोह का मान बढ़ा। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से विश्वविद्यालय को नई दिशा मिली है। पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व कुलपति डॉक्टर MP पांडे सर का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके बताए मार्गों पर विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। आपकी मौजूदगी में हमें सुखद अनुभूति हुई है। राजभवन परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके समारोह से इस समारोह का भव्य आयोजन सफल हो चुका है। पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है। समारोह में मौजूद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को धन्यवाद है।